Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am here to discuss today's newspaper that basically I am following the Hindu newspaper article. Some topics are important regarding today's. Uh, there are the one topic Indian Coast Guard, another water conservation model. Basically, these both topics are related to means or the Indian Coast Guard. It is a defense paper 3. uh, if, yes, yes, it is paper 3 uh, topic another water conservation model राजस्थान. सब इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये केस स्टडी है. इफ यू आर mentioning a case study or examples that you should able to enhance your number in the sheet. E-waste recycling park Priya Tiger Reserve SEZ rule 2006 G7 or NATO. Or there are the many articles regarding to Manipur violence. Then I was covering yesterday. Then there are the two community Mitai or Kugija community. Here first topic and that will cover in a systematic manner. The first time covering Indian Coast Guard. The news article mentioning cargo vessel catches fire of Kerala Coast Navy Coast Guard rescue 18 for missing. There are the Indian Navy or Coast Guard. Some questions are asked in coastal region. Then I am covering here. I'm not here to cover any newspaper article that's to spread my views or enhancing to publicity. That I am consistent on a relevant topic. Indian Coast Guard. This is the ministry. Indian Coast Guard वेबसाइट से ये कवर किया गया है. इंडियन कोस्ट गार्ड इज ए इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया. एक कमेटी फॉर्म्ड हुई थी आफ्टर 1971 वार के बाद में कमेटी फॉर्म हुई थी. ये रुस्तम जी कमेटी that recommended the formation of ICF Indian Coast Guard and gave the blueprint of Indian Coast Guard formations. Indian Coast Guard is a fourth largest coast guard in world. Headquarter इसका दिल्ली में है और they have the 5 coast guard regions. Basically it is divided in 5 coast guard regions: northwest, west, east, northeast और अंडमान निकोबार. These are the headquarters. हेडक्वार्टर्स नॉर्थ वेस्ट गांधीनगर है, वेस्ट मुंबई, ईस्ट चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट कोलकाता, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर. mission and motto. What is the mission and motto of Indian Coast Guard? The mission to protect our ocean and offshore wealth of including oil, fish and mineral. Oil, fish and mineral to assist marine in distress and safeguard life and property of sea. बेसिकली ये सी को प्रोटेक्ट करता है पूरी तरीके से. वहाँ से जो चीज़ निकलती हैं सारी चीज़ों को का प्रोटेक्शन के जिम्मे इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया जाता है. टू इन्फोर्स मेरिन लॉ
with respect to sea, poaching and smuggling and narcotics. To preserve marine environment and ecology, to protect rare species, to collect scientific data and backup to Navy during war. ये मोटो इसका है, वी प्रोटेक्ट, तैयार, तत्पर और जवाबदेह, ready, relevant and responsive. Just you, if any question asked in UPSC means or any examination, just you write Indian Coast Guard is a world fourth largest coast guard in world. Just that motto is ready. That motto is to protect our ocean wealth, including fish, minerals, etc. and ready, relevant and responsive. इनफ आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर मिशन और मोटो दिया हुआ है, जस्ट हैविंग अ 5 रीजन। आगे देखते हैं कि क्या है। वाटर कंजर्वेशन मॉडल, ये केस स्टडी है बेसिकली। Today's newspaper, they have just article on, then I am considering to hear. You can see there are aerial view of farm pond of Jaipur's Kuka village. In many of 50 such ponds have been dug of the area of special arrangement. जस्ट अगर आपको ये याद नहीं है कुका विलेज और वाटर कंजर्वेशन मॉडल, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट का कोई सा भी एक मॉडल याद कर लीजिए वाटर कंजर्वेशन में, दैट्स इनफ। ये नहीं पूछेगा कि वेयर कुका विलेज मॉडल एंड विच स्टेट्स हैव फॉलोइंग द कुका विलेज मॉडल इन यूपीएससी। जस्ट ये मेंस के लिए था, दैट्स इनफ। अब देख लेते हैं इसका। Rajasthan, a transformative rural water conservation model is set to benefit farmers into upcoming monsoon. Climate resilient फॉर्म बेसिकली ये होता है क्या ना कि रूफ टॉप मॉडल है। जैसे मान करके चलिए ये रूफ है और बारिश हुई तो इसको एक बोरवेल से कनेक्ट कर दिया जाता है। दैट कुड बी एट एस्टिमेट water conservation that could be 14 lakhs to 21 lakhs liters seasonal. Yeah. Climate resilient farm pond of Kuka village. It has the 14 lakh to 21 lakhs liter of good seasonal monsoon. Roof of was the following at every farm of 1 hectare of Jaipur. Other water conservation model in Rajasthan, reviving traditional water system, Babri. आते हैं आगे। some water conservation मॉडल देखे हैं आप। सब इसको रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स देख लेते हैं और स्कीम्स। व्हाट इज द स्कीम्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन दैट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति to launch the implementing जल शक्ति अभियान। कैच द रेन, जल शक्ति अभियान। अब उतना नहीं पढ़ना है जो जल शक्ति अभियान क्या है, जस्ट मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और कैच द रेन वेयर इट्स फॉल, जस्ट इन्वर्टेड कॉमा में ये कैच द रेन 3 ही याद रखना है। अगर 3 लेटर ही याद आती है तो ठीक है, इसे ज़्यादा याद ही नहीं रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, MG नरेगा इंक्लूडिंग वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। अब बोलिएगा इसमें एग्जाम्पल कैसे होगा, तो एग्जाम्पल इसका पॉन्ड
built a pond in individual field or individual agricultural field। और वर्ल्ड वाटर डे 2025 पर जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन, जल जंगल जन 3J। और आप इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर जल, यहाँ पर जंगल यानी जंगल, और यहाँ पर जन मतलब मेन, यहाँ पर वाटर और जंगल। तो आप दिखाई दीजिए पेड़ बना कुछ, तो इसीलिए ये स्पीक ऑफ सेविंग वेल्थ, धन संचय टू जल संचय इज मोर इम्पोर्टेंट वाइल सेविंग वाटर। जस्ट 4 स्कीम्स हैं, आप 5 स्कीम्स है, 5 में से कोई सा भी याद कर लीजिए। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना, MG नरेगा, ये जल जंगल जन, दैट्स इनफ वाटर कंजर्वेशन के लिए। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क एक्चुअली इस्टेब्लिश द इंडिया फर्स्ट, ये जो है वो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होगा। तो इंडिया फर्स्ट रिसाइकलिंग पार्क इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह announced the India first ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इन दिल्ली, बिल्ट अप 11 एकर्स में। ये तो फालतू का इंफॉर्मेशन था, कुछ था नहीं डालने के लिए, इसलिए हमने डाल दिया था। या बिल्ट मॉडल ऑफ डिजाइन, या यहाँ है डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये इन्वेस्टमेंट का कुछ मॉडल होता है या तो आप जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिएगा तो उसमें BOT है, ऐसे ही कुछ DBFOT है, PPP मॉडल है, ऐसे 3-4 मॉडल्स है, जस्ट उसको देख लीजिएगा। अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज बीन 15 ईयर्स के लिए ये दिया गया है। अब देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व, इस आर्टिकल में कोई सा भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जस्ट एक लाइन, आपको इतना पढ़ने का जब भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़िएगा, एवरी बाउंडेड वाइट टाइगर डोंट इट्स डॉग, ये स्टोरी टाइप्स का है, इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। जस्ट ये रिलेवेंट है पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, तो इट इज सिचुएटेड इन केरला। country based mentioned water maintained water sorry टाइगर रिजर्व। ये भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसमें से 2 ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। फर्स्ट में ये केरला में है, और रिवर फॉलो होती है इसमें पेरियार और पंपा। ये पंपा प्लस पेरियार, 2 ही रिवर फॉलो होती है। और इसका स्पीसीज जो है उसमें जो होता है वो स्पीसीज में सबसे पहले एलिफेंट है, उसके बाद लाइन टेल मकाओ है, लाइन या यहाँ पर है आई हैव मेंशन्ड दिस लाइन टेल मकाओ है, और नीलगिरी लंगूर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एलिफेंट और लाइन टेल मकाओ से UPSC बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलिफेंट से इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एलिफेंट का वो गर्भाधान पीरियड कितने दिनों का होता है, वो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020-21 में।
or Lionel Macau, if you are analyzing the question paper of 2021 to 2025, 14 years, then you should know more than 10 to 12 times Lionel Macau have been mentioned in a option. चार धाम यात्रा after the series of accident at DGCA to review the चार धाम यात्रा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन. जस्ट इस आर्टिकल में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द DGCA एंड चार धाम यात्रा एंड वेयर इज चार धाम. तो चार धाम तो सब जानता ही है, सब जानते ही हैं, ये उत्तराखंड में पड़ता है. और चार टेम्पल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. बद्रीनाथ में लॉर्ड विष्णु डाइटी एंड गॉड जो है बद्रीनाथ टेम्पल में लॉर्ड विष्णु विराजते हैं, केदारनाथ में लॉर्ड शिवा, गंगोत्री में गंगा और यमुनोत्री में गॉडेस यमुना. और DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. नाउ हु इज द DGCA नाउ? He is appointed Faiz Ahmed Kidwai. He is appointed in 2025 फरवरी के टाइम में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था. He is an मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर. जस्ट ये UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, BPSC और UPPCS के लिए these are the important. DGCA क्या करता है? रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन, प्राइमरी डीलिंग विथ सेफ्टी इशूज. इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एक्सीडेंटल और आगे ना हो तो उसके लिए सेफगार्ड और रेगुलेशंस भी ये जारी करता है. हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में. Supreme Court refused the urgent hearing in Tamil Nadu Pillai against Center on Education Fund. इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. अभी ये कोर्ट केस गया ही है. अब इसका डिसीजन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होगा. जस्ट अगर आप इसको पढ़िएगा पूरा आर्टिकल, जस्ट इसमें से तीन ही चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको लगेगी. एक आपको लगेगा यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो NEP 2020 ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. दूसरा देयर आर द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर स्कीम्स. PM श्री स्कूल स्कीम्स है, दीज स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट. और थर्ड स्कीम्स समग्र शिक्षा स्कीम्स है. दीज स्कीम्स आर अप टू 12th तक ये रहता है. इंटीग्रेटेड स्कीम्स है. I am making a separate video on a scheme. Then I am not covering here. Just आपको ये दिखा रहे थे कि ये गया हुआ कोर्ट. तो एजुकेशन, आप ये बताइए कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट में है या 3 लिस्ट है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. तो एजुकेशन कहाँ लाइक करता है इन तीनों में से? G7 प्राइम मिनिस्टर now Indian Prime Minister has visited Cyprus and Croatia. Cyprus और क्रोनेशिया. साइप्रस आइलैंड कंट्री है और इसका राजधानी कहाँ है? जगरेब. साइप्रस का राजधानी जगरेब और क्रोएशिया का निकोसिया, और उसको लेफ्कोसिया भी बोलते हैं. निकोसिया और लेफ्कोसिया दोनों भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैपिटल पूछता नहीं है. देन I have dropped it. G7 summit held in 15th June to 17th June. ये होगा कहाँ? ये कनाडा में. और
और क्रोएशिया फर्स्ट प्राइम ministerial level visit from the Indian side as a first PM of Indian PM who goes to Croatia because of ये भी टेरर अटैक इस पर भी हुआ था 2022 में. then मोदी जी चूज to go to Croatia. Why choose Croatia to visit Croatia and Cyprus? Cyprus faced terror attack rise to issue of the cross-border terrorism, and Cyprus has consistent to support of India on the Kashmir issue, cross-border terrorism from Pakistan. Cyprus हमेशा इंडिया का साथ देता है on the पाकिस्तानी साइड पे कि why Pakistan doing on cross-border terrorism in India. Croatia trips. What is the meaning of visiting the Croatia trips? Then it is the strong ideology. Tradition create a strong ideology, and Croatia में presence है ISKCON. ये कृष्ण का ISKCON जो है वो कृष्ण का पूजा करते हैं वो मंदिर. helping to establish cultural contact, and cultural contact बना तो टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस डील होगी ही. building of the relationships and another human capital transactions ट्रांसफर होगा ही. तो अब देखते हैं व्हाट इज द रायसीना डायलॉग. और ये ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. इट इज द इंडिया प्रीमियर जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस. और थीम 2025 का थीम क्या है? कालचक्र, पीपुल, पीस, प्लैनेट. 3P. people, peace, planet. G7. अब देख लेते हैं व्हाट इज the G7 countries. Basically G7 is a most industrialized country. World largest industrialized nation discuss to economic stability and coordinate their economic policy. So, ये कब बना था? 1975 में ये बना था. और आफ्टर 1975 में जब बना था तो G6 था. आफ्टर 1 years रशिया has joined the G7 countries. Basically it addressed the significant economic issue like inflation and global recession. Nuclear Supplier Group NSG. India is not a member of Nuclear Supplier Group. Nuclear Supplier Group is a group supplier country that seeks the prevent of nuclear proliferation by the controlling the export of material, equipment and technology. Material, equipment and the technology that can use to manufacture nuclear weapon. ये ग्रुप है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जस्ट. और चाइना बोला है कि इंडिया को भी एनएसपी का सदस्य होना चाहिए. इंडिया शुड बी साइन द ट्रीटी ऑफ एनपीटी.
Yesterday Mumbai is facing a rail accident due to overcrowding. 4 to 5 more than four people are throwing away from a rail coach. 4 persons were killed. They fell from local train in Mumbai due to the overcrowding. अब आप देख लीजिए कि सभी जा रहे होंगे जॉब पर, सभी जॉब पर्सन है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? आफ्टर द मुंबई एक्सीडेंट रेलवे न्यूज द नॉन एसी ट्रेन विल ऑटोमेटेड डोर क्लोजर फैसिलिटी। ये होगा कब से? जनवरी 2026 से। और इतने दिन से सरकार वेट कर रही थी कि कब एक्सीडेंट होगा, फिर इसको लाया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शिफ्टेड दिल्ली टू महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन FDI से क्वेश्चन से हमेशा रहता है, चाहे वो मेंस रहे या चाहे वो प्रीलिम्स रहे। व्हाट इज शिफ्टेड बाय? पहले दिल्ली में FDI जो पहले आता था तो वो दिल्ली में आता था। अब महाराष्ट्र है gaining significant changes. More than 5 state has controlling more than 75% of investment, FDI investment. आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। अब इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है। तो महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में महाराष्ट्र ऐसे कल 6 बिलियन है, दिल्ली 5 है, और तो गुजरात 3 बिलियन के लगभग में है। इतना फैक्चुअल डाटा पूछता नहीं है। दिल्ली अकाउंटेड 32% FDI इन 2015 तो 16 में 12.7 मतलब 13 बिलियन का FDI था, जो अब हाफ हो गया है। नाउ it has Delhi has facing the significant decrease. Delhi has facing the significant decreasing, but Maharashtra has facing the significant increasing. Maharashtra saw the share of the growth 24% growth has shown. Karnataka has among the top 5 FDI destinations for 9 out of 10 years. Gujarat has nearly double its share of the national FDI, 6% to 11%. 2015 में 6% था, अभी 11% FDI आ रहा है। जस्ट इसमें 2 ही चीज़ें याद रखने वाला है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आता है? तो सबसे ज़्यादा FDI महाराष्ट्र में, और सेकंड 2015-16 और सेकंड दिल्ली में, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं इसमें। नाटो, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है नाटो पर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस। 1949 में ये फॉर्म हुआ था, इंस्टीट्यूट टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी किस आर्टिकल से देता है? तो आर्टिकल 5 से देता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी देता है वो आर्टिकल 5 ऑफ नाटो। हेडक्वार्टर बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। नाउ 32 कंट्रीज यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का है। कोर प्रिंसिपल कलेक्टिव डिफेंस, एन अटैक ऑन one NATO country is considered an attack on all, evoked to only once after 9/11 attack. Founding member Belgium, Canada,
डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, तो उसके बाद पुर्तगाल, यूके, यूएसए और लास्ट में लक्जमबर्ग। देख लीजिए BCD, FII, NNPUUL। तो इसका कोड क्या बना? BCI, DFI, सॉरी DFN, DFL, NNPW। आप इसका कोड आप फॉर्म कर सकते हैं कुछ। लेटेस्ट ज्वाइनर फिनलैंड इज द लेटेस्ट ज्वाइनर ऑफ नाटो, 2023 में हुआ था। और यूक्रेन also applied to join NATO in 2022 में, but Russia has attacked on Ukraine. Non-NATO EU members Austria, Ireland. SAGE rule SEZ ये 2006 में, एक्चुअली ये रूल इम्प्लीमेंट 2006 में हुआ था, बन गया था 2005 में ही, मतलब बिल पास हो गई थी 2005 में, इम्प्लीमेंटेड 2006 में हुआ है। जस्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हेल्प टू बूस्टिंग एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इसका मोटो तो जो है वो दरअसल चार या ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका यहाँ है। क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, boost the export of goods and service, generate employment, boost domestic and foreign investment, develop infrastructure facility. Just FDI, employment और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जस्ट यही इतना ही याद रखिएगा। सबसे पहला इकोनॉमिक जोन इंडिया का कहाँ था? कांडला गुजरात में। बेसिकली ये SEZ क्या फॉलो करता है, कॉपी करता है जस्ट चाइनीज मॉडल को कॉपी करता है। इससे फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज एस्टेब्लिश्ड इन कांडला गुजरात। ड्यूटी फ्री एरिया होता है ये, टैक्स डिबिट दिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स में दिया है, पहले मैट में देता था, दिया जाता था। SEZ वाज पास्ड 2006 बट कम्स इनटू 2005 बट कम्स इनटू 2006। इंडिया SEZ were structured closely with China's successful model. चाइना जो है वो 1978 में लागू कर दिया था, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1980 में वो लागू कर दिया था। then he become a manufacturer hub of world. Presently 379 SEZ are notified but 265 are operational. इतना जानिए कि जस्ट 5 राज्य है, राज्य में मोर देन 64% ऑफ SEZ आर लोकेटेड। तो वो 5 राज्य कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु होगा ही, महाराष्ट्र होगा ही, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। एक कमेटी फॉर्म हुई थी SEZ को लेकर के, बाबा कल्याणी कमेटी, या आई हैव मेंशन हियर बाबा कल्याणी कमेटी स्टडी द एग्जिस्टिंग SEZ पॉलिसी। जस्ट अगर SEZ आ रहा है तो जस्ट एक कमेटी याद रखिएगा, कल्याणी कमेटी।
बाबा बाबा कल्याणी कमेटी। फैसिलिटी, what is the facility provided in SEZ special economic zone? तो there are the single provided by the single window clearance of central and state levels operations, external commercial borrowing up to around पिछली बार तो 500 करोड़ तक का था एक्सटर्नल बोरोइंग आप कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम वेरियस टैक्स लाइक इनकम टैक्स, मैट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है। नाउ why it's important of today's article, then government has decided to give tax rebate or land area rebate to semiconductor and electronics device setup। उन्हें थोड़ी सी जमीन जितनी चाहिए होती है सेटअप्स करने के लिए, उतनी अगर नहीं मिलती है तो भी आप उस एरिया में आ सकते हो और अपनी फैक्ट्रियां लगा सकते हो। that government has amended the rule SEZ 2005 को अमेंड करके SEZ अभी रिसेंटली अमेंड किया है। कुकीजा कम्युनिटी और मिथाई community, these are the basically belongings from Manipur।